My dear students, Assalamu alaikum wa adab. My lesson for today is for class 8. Subject is mathematics and topic is square and square root. What means square and what means square root? Square means the product of a number with itself. Square means the product of a number with itself. Square मतलब गो कुने नंबरस दिमो ज़रब पन्नस पानस सहित ये तक नेस तमिक square. Example, square of 2 is equal to, ऐसे हम लिखते हैं इसको 2 square, that is 2 into 2, that is 4. Similarly, square of 3 into 3, that is 9. ये हो गया स्क्वायर. अब हमें देखना है कि स्क्वायर रूट क्या होता है. Square root of a number is the value which when multiplied by itself gives the number. Square root छे वन अके नंबर स्क्वायर रूट हसा गो सु नंबर यथ नंबरस अस पन्ने पान सहित ज़रब दिमो तो यह नंबर बन यथ स्क्वायर रूट वुचुन. सपोज 2 कोर स्क्वायर तक द्राव 4 अगर स्क्वायर रूट करो तक नेरे 2. 3 स्क्वायर छु 9 स्क्वायर रूट छु 3. इस स्क्वायर क्या एक्चुअली आसन स्क्वायर असल नंबर कुछ नंबरस स्क्वायर कर अमुक मतलब आसन अगर हसा ये नंबर आसे कुछ स्क्वायर साइड तो तमुक एरिया कोता आसे. सपोज बह निम स्क्वायर अत निम मे 3 सेंटीमीटर प्रथ कह साइड निम मे 3 सेंटीमीटर अमुक एरिया कोता दैट इज 9. 3 into 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या s into s. तो स्क्वायर रूट क्या होता है फिर. स्क्वायर रूट अगर किसी स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है तो इसका साइड क्या होगा. इसका एरिया है 9 तो साइड क्या होगा ये देखेंगे किस का स्क्वायर है. ये 3 का स्क्वायर है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. तो यहां हमें सिंपली याद रखना है कि स्क्वायर का मतलब हो गया किसी नंबर को खुद से ज़रब देना, जो वहां प्रोडक्ट मिलेगा वो स्क्वायर है उसका. द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड इट स्क्वायर. और जो स्क्वायर रूट है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द नंबर. तो so far you have memorized so many tables. Someone has memorized 10, 12, 13, 14, 15, even 20. But today you have to memorize a new table that we call the square table. What is square table? 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, 10 square, 11 square, 12 square, and so on. We will memorize it in this way. 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100, and so on.
This table will help us to solve the questions based on this square and square root. Now, let us observe this table keenly. What we find here? First of all, one thing we find here that one is even, one is odd, and its square is odd. This is called square number also. This is called perfect square also. 1, 2 square is 4. 4 is a perfect square number or square number. Perfect square number or square number. A number which is square of any other number is called a perfect square number. Here we see 1 is odd, its square is odd. 3 is odd, its square is odd. 5 is odd, its square is odd. Similarly, 2 is even, its square is even. 4 is even, its square is even. 6 is even, its square is even. And so on. So, we have learned from this table that which we have to keep in mind that square of an odd number is always odd. And similarly, the square root of an odd number is always odd. And what about even? 2 is even, square is even. 4. 4 is even, 16 is even. 6 is even, 36 is even. So, we can also say that square of any even number is always even, and square root of any even number is always even. These are 4 points that we have learned here. Now, one thing more. Let us see what is the digit at the ones place for these perfect square numbers. 0 is present, 1 is present, 2 never. 2 is not present at ones place. So, 2 is not present. 3, no, 3 is not present at ones place. 4 is present, 5 is present, 6 is present, 7 is not present. Also, 8 is not present. 9 is present. Okay. So, we can say by observing keenly this table, we can say the numbers that end matlab ones place. The numbers that end or which have digits 2, 3, 7 or 8 at the end, that is on its ones place, they can be never perfect squares. Yman the number ones place pet has 2, 3, 7 या 8. तब गस नजर से दपन यम नसा छन परफेक्ट स्क्वायर कि मगर यह से ब्याक चीज और एक चीज हमें याद रखना है कि द नंबर which has odd number of zeros at the end is also not a perfect square. Yet last assassin even number 0 masala 100 even number 0 0 अगर कुछ odd number 0 1 0 3 0 5 0 7 0 so it reject karun it can not be a perfect square. Masala bunim 50. It is not compulsory that the number having the even number of zeros at the end is a perfect square. It can be or not. But the numbers that have the odd number of zeros at the end
is certain that it is not a perfect square. तो हमने याद, और ये एक बात हमें याद रखनी है कि जिस नंबर के आखिर पर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा या और नंबर ऑफ जीरोस होगा, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। और एक बात हमें याद रखनी है, नंबर ऑफ द नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। मसलन वो क्या हो गया, अगर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, इसके बीच में हमें देखने हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं यहां, हम क्या करते हैं यहां 2n, ये बराबर होता है 2n, वेयर n इज स्मॉलर नंबर। यहां स्मॉलर 2 है, तो लेंगे हम 2 इंटू 2, तो हम कहेंगे 4 नंबर है इनके दरमियान। जरा देखिए, 2 2s are 4, 3 3s are 9, इसके दरमियान देखना है, इसमें आएगा 5 6 7 and 8, तो आ गए ना 4 बराबर। So we can say the total numbers between the squares of 2 consecutive numbers is always equal to 2n, where n is smaller number। अगर हमें 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के दरमियान देखना है कि कितने नंबर्स इनके बीच में है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू n का मतलब हो गया 12 छोटा वाला, तो हम कहेंगे 24 है इसके दरमियान। और क्या हमें याद रखना है ये चैप्टर करने के लिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, जो ऑड नंबर होते हैं जिनके वंस प्लेस पर 1 3 5 7 9 होता है। अगर हमें पहले 5 और नंबर्स का सम कोई बताएगा कितना होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना होगा, इसने पहले 5 बताए, हम देखेंगे कितने हैं ये, 5 का स्क्वायर करना है, 5 5 25, तो फट से जवाब देना है, इसका सम है 25। अगर कोई कहेगा पहले 6 या 7 और नंबर्स का सम बता, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये कितना हो गया, आपने देखना है ये कितने आ गए कंटिन्यू, ये 7 आ गए, 7 का स्क्वायर करना है, 7 7 are 49, तो बताना है 49। तो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.1। आप देखो जरा बुक की तरफ, 6.1 100 पेज नंबर 103। What will be the unit digit of the squares of the following? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 81। ये कहता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, मसलन 81 का स्क्वायर करना है, हो गया 81 इंटू 81, तो इसके वंस प्लेस पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। अगर हम इसका, तो ये देखना है कि वंस के साथ हम मल्टीपल करते हैं और जो वहां निकलेगा वो वंस पर लिखेंगे, लेकिन अगर डबल डिजिट निकला है तो इनमें से राइट वाला लिखेंगे। यहाँ ये करना नहीं है, ऐसे ही बताना है। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम, इसका आएगा 1, अगर इसका 1 1 = 1। इसी तरह ये सेकंड पार्ट बताता है 272, इसका यूनिट डिजिट पर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो पूरा नहीं करना है, सिर्फ वंस प्लेस का करना है, 2 2s are 4, तो इसका 4 आएगा। सिमिलरली 799
यहां देखना है थोड़ा 799, इसका क्या आएगा 1 यूनिट पर। 9 को 9 से करना है, 9 9 81, 81 में लिखते हैं 1, तो यूनिट पर आएगा 1 बस। तो फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे 3853। अब है क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। ये कहता है कि ये जो दिए हुए हैं 1057, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बता वजह क्या है। मैंने बताया ना, जिसके आखिर पर 7 3 2 या 8 होगा या ऑड नंबर ऑफ जीरो हो गए, वो कभी नहीं हो सकते। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर या सोल्यूशन लिखेंगे हम आंसर, बिकॉज इट हैज digit 7 at end or at one's place। इसी तरह दूसरा पार्ट है 2 3 4 5 3, इसका लिखेंगे बिकॉज इट हैज 3 at one's place, so it cannot be, obviously it cannot be a perfect square। 7 8 2 8, it cannot be a perfect square, रीजन है हमारा क्योंकि it has 8 ऑन वन प्लेस। तो और एक है यहां 6 4 0 0 0, ये फिफ्थ है। तो इसका हम रीजन क्या बताएंगे, ये दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट रीजन इज दैट इट हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। इट हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। तो हो गया ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड। क्वेश्चन 3, ये आपको अब आनी चाहिए खुद ही, किसका स्क्वायर ऑड होगा। जो खुद ऑड होगा उसी का ऑड होगा। मैंने कहा है कि एवरी द स्क्वायर ऑफ every odd number is odd and even number is even। तो यहां लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 431, तो यहां आंसर में लिखेंगे हम पार्ट नंबर 1 का ऑड होगा 431, और दूसरा 2826, ये इवन है, इसका ऑड नहीं होगा। थर्ड है, थर्ड पार्ट भी इसका आंसर आएगा 7779। फोर्थ पार्ट है 82004, ये नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पैटर्न है, ये आपको खुद आएगा 4 5 6, ये आप खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर डायरेक्ट आएंगे हम। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, हमें ऐड नहीं करना है, ऐसे ही ट्रिक से बताना है कि इसका सम कितना है। पहला पार्ट दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। मैं लिखूंगा सोल्यूशन 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो मैंने बताया कि कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। अगर सेकंड पार्ट हम लेंगे तो 1 3 5 7 9। दूसरा पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, ये लिखेंगे हम +19 तक दिया हुआ है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये आते हैं 10। तो लिखेंगे हम 10 स्क्वायर दैट इज 10 × 10 इज 100 इज आंसर। अगर पहले 20 आएंगे, सपोज पहले 20 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का सम करना है, तो 20 का स्क्वायर दैट इज 400। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, it was
Question number 7, yes. It was question number 7. Now it is question number 8. Express 49 as sum of 7 odd numbers. 49 को हमें पहले 7 odd numbers में दिखाना है, 7 odd numbers में दिखाना है. तो हम लेंगे पार्ट नंबर 1, solution 49 is equal to 7 square. That is odd number कितने आएंगे इसमें? 7. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. 1 2 3 4 5 6 7. 7 square, that is 49. यहाँ सम दिया हुआ था, ये ऑड नंबर दिए होते हैं, सम करना था. अब सम दिया हुआ है, इसका हमें ऑड नंबर लिखने हैं, कितने ऑड नंबर का सम है ये. सिमिलरली सेकंड वन इज चलो ये खुद करोगे ऑफ. अब क्वेश्चन नंबर 9. नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is how many numbers lie between squares of the following. जो भी मैंने बताया. How many numbers lie between squares of the following. Part number 1 is 12 and 13. इसका मतलब है 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दी, इनके दरमियान कितने, हाउ मनी नंबर्स, कितने नंबर्स आते हैं. मैं सोल्यूशन लिखूंगा. टोटल नंबर्स लाइंग बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसका फॉर्मूला बताया है 2n, where n is lowest term. 2n, that is 2 into 12, that is 24. 12 स्क्वायर हो गया 144, 13 स्क्वायर हो गया 169. 144 और 169 के दरमियान 25 नंबर आएगी. लेकिन हमें इस तरीके से करना है, हमें बताना नहीं कौन कौन सा आएगा. सिमिलरली सेकंड पार्ट इज 25 एंड 26. तो मैं लिखूंगा सेकंड पार्ट ऐसे ही, टोटल नंबर्स लाइंग बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, that is 2 into 25, that is 50 is आंसर. 50 नंबर्स लाई करते हैं 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के दरमियान. अगर मैं थर्ड पार्ट भी ले लूं तो ये है 99 एंड 100. मैं लिखूंगा टोटल नंबर्स लाइंग बिटवीन 99 स्क्वायर and 100 square is equal to 2n, that is n is lowest term, 2 into 99, that is 198 is answer. तो उम्मीद है कि ये भी समझ आया होगा आपको. तो now it is turn your page. Now page number 106, exercise 6.2. Exercise 6.2, question number 1. क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग. 32 का स्क्वायर करना है. अगर यहां दिया होता फाइंड द स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो कुछ और तरीका करना था. उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना था, इसको 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाना था. लेकिन यहां सिंपल ये दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर. तो स्क्वायर हम करेंगे सिंपल मल्टीपल करके. 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 32, दैट इज
ये आप करोगे जैसे 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 4 2 10, 1024, sorry, yeah, 1024 और 1024। तो इसी तरह ये आपको आएंगे। आप 25 का करना है, मैं लिखूंगा 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। तो आपको खुद अब करने हैं ये बाकी पार्ट्स। इसमें अब है 86 का स्क्वायर करना है, 93 का स्क्वायर करना है, 71 का, 46 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, write the Pythagorean triplet whose one number is given. Number 1 is 6, number second is 14, and number third is 16. Find the Pythagorean triplet. Pythagorean ट्रिपलेट। ये क्या हुआ? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले हमने ये भी नहीं पढ़ा था। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियस के नाम से है। पाइथागोरियस was a mathematician from Greek. He has given an important formula. In addition to the other contributions, he has given an important formula in the geometry that states that in a right angle triangle, base square plus perpendicular square is always equal to its hypotenuse square. सपोज मैंने राइट एंगल बनाया, इसमें बेस स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो वो हमेशा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अगर ये 3 है, ये 4 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, हो गया 25। तो ये जरूर 5 होना चाहिए, तब राइट एंगल बनता है। राइट एंगल की ये प्रॉपर्टी है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट are those 3 numbers which satisfies the value of sides of a right angled triangle. पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो 3 नंबर्स है जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं हम? पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। मसलन मैं लेता हूं 2 3 4, तो 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 13 इज इक्वल टू 16, ये इज नॉट इक्वल टू 16। That means 2, 3 and 4 is not a triplet. Or we can say 2, 3, 4 units cannot be sides of a right angled triangle. So when one side is given or one number is given, one number of the triplet is given, how we find the other numbers, other sides or other numbers of the triplet? For this, we have to keep a formula in our mind, that is 2m, that is the sides
or the numbers of a triplet are always 2m, m square plus 1, m square minus 1, and m square plus 1. These are three sides of a triplet. This is formula for that. When one number is given, that means 2m is given, because 2m is always shortest small side. So let us take part number first solution. If this 2m is 6, that means 2m is equal to 6. We can get the value of m. M is equal to 6 by 2, that is 3. M is equal to 3. Therefore, one side is given this 6, other number or second number. Second number of triplet is equal to, सेकंड नंबर क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 1. m का वैल्यू निकला है 3. हम लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 9 माइनस 1, दैट इज 8. सिमिलरली थर्ड नंबर ऑफ ट्रिपलेट is equal to 3 square plus 1, that is 9 plus 1, that is 10. So therefore the other two numbers are 8 and 10. तो अगर हम यहां चेक करेंगे ये ट्रिपलेट है कि नहीं, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, दैट इज 6 6 आर 36, 8 8 आर 64, 10 10 आर 100. ये भी आता है 100, 100 इज इक्वल टू 100, ये बराबर है. तो अब सेकंड है इसका 14. हम अब लेंगे 2m इज इक्वल टू 14. एक साइड दिया हुआ है, एक साइड 2m लेंगे हम. 2m इज इक्वल टू 14, m इज इक्वल टू 14 बाई 2, m इज इक्वल टू 7. देयरफॉर सेकंड नंबर क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 7 7 आर 49, माइनस 1, दैट इज 48. Similarly, third number is equal to m square plus 1, that is 7 square plus 1, that is 49 plus 1, that is 50. Therefore, the other two sides numbers are 48 and 50. Similarly, there is another side is given 16. Here we will take 2m is equal to 16, m is equal to 16 by 2, that is 8. Second side, second number is equal to m square minus 1, that is 8 square, minus 1, that is 64, minus 1, that is 63. Third number is equal to m square plus 1, that is 8 square, plus 1, that is 64, plus 1, that is 65. Therefore, the other two numbers of this triplet whose one side is 16, the other two sides are 63 and 65. ये आज हमने लेसन नंबर 1 लिया है इस चैप्टर का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. तो इसका आएगा, इसके बाद हम इसका लेंगे लेसन नंबर 2. आप वो भी देखोगे, वो भी सुनोगे, देखेंगे कितने लेसन्स बनते हैं उस पर. तो उम्मीद है कि
आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कंफ्यूजन है, अगर किसी जगह पर आपको कंफ्यूजन रहा या कुछ समझ नहीं आता है तो आप फ़ोन नंबर 7898555574 पर कॉल कर सकते हैं। तो मुझे खुशी होगी कि आपके किसी क्वेरी का जवाब देने के लिए। तो अब खुदा हाफिज, आप अंदर रहो और किताबों की तरफ ध्यान दे दो। बाकी वसलाम।